आदिवासी महिलाएं हिंदू नहीं हैं, सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनने का मेनका डामोर ने मानगढ़ धाम से किया था ऐलान। अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है मामला। महिला संगठन आ रही है धीरे धीरे विरोध में। 18 जुलाई को आदिवासी सांस्कृतिक महारैली के दौरान मानगढ़ धाम से मेनका डामोर ने आदिवासियों को हिंदू नहीं है और मंगलसूत्र मांग नहीं भरने के बयान के बाद अब धीरे धीरे महिला संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जगह जगह पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस बात का विरोध जताया जा रहा है। कई महिला संगठनों ने इसका विरोध दर्ज करवाते हुए अपनी बात रखी। क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, सुनिए जरूर। मोगरा माता की जय। मारू नाम છે વસાવા અનિલા। હું ભરૂચ જિલ્લામાંથી બોલું છું। રાજસ્થાન ખાતે બાંસવાડા જિલ્લામાં એક સંમેલન કરવામાં આવેલું હતું। એ સંમેલન ખાતે એક આદિવાસી મહિલાએ સ્ટેજ પર જઈને એને સ્પીચ આપેલી અને સ્ટેજ પર જઈને સંમેલનમાં એને ખાસ કરીને બહેનો પર જે વક્તા તરીકે વક્તવ્ય આપેલું એને એ મેનકા ડામોરને હું ચુનૌતી આપવા માગું છું કે એને જે વાત કરી છે કે આદિવાસી હિન્દુ નથી। મારે મેનકાને એક જ વાત કરવી છે, તું કયા વિધર્મીઓ સાથે મળી અને કહે છે કે આદિવાસી હિન્દુ નથી। આદિવાસી બહેનો પર ખાસ વાત કરી કે આદિવાસી બહેનોએ મંગળસૂત્ર ન પહેરવા જોઈએ, આદિવાસી બહેનોએ ટીકો નહીં લગાવવો જોઈએ, આદિવાસી બહેનોએ શિંગાર નહીં કરવો જોઈએ, આદિવાસી બહેનોએ ઉપવાસ નહીં રાખવા જોઈએ, આદિવાસી બહેનોએ વ્રત નહીં કરવા જોઈએ। તો તને આ વાત કરવા માટે કયા વિધર્મી લોકો સાથે મળીને કયા લોકોએ તને ફંડિંગ કર્યું છે ને કઈ તાકાતથી તું બોલી રહી છે? જો તને આ બધા તારો જે તું બોલી છે એનો જવાબ જો તને જોઈતો હોય તો આવી જજે ભરૂચ જિલ્લામાં વસાવા અનિલાબેન પાસે। અને આ સ્ટેજ પરથી તે જે આ બોલી છે કે જે અમારા આદિવાસીની સંસ્કૃતિને તે દબાવવાની કોશિશ કરી છે, આદિવાસીઓ લોકોને આવી ખોટી રીતના તું ગેરમાર્ગે દોરી રહેલી છે। અમારે જ્યારે પતિદેવ જીવતા હોય છે ત્યારે અમે મંગળસૂત્ર પહેરીએ છીએ, અમે ટીકો લગાવીએ છીએ, અમે શિંગાર પડીએ છીએ। જ્યારે અમારા પતિદેવ જ્યારે ભગવાનના ત્યાં જતા રહે છે ત્યારે અમે લોકો આ ત્રણેય વસ્તુ નથી કરી શકતા અને અમારા દેવી દેવતાઓને અમારા દેવીઓને પણ વ્રતો જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે અમારી દેવીઓ પણ શણગાર કરે છે। અમારા શણગાર વગરની સ્ત્રી કેવી હોય છે એટલે કયા ધર્મમાંથી આવે છે, તું કયો ધર્મ પાડે છે, કયા વિધર્મીઓ સાથે મળી અને તું આ બધી બોલી રહેલી છે, તને ફંડિંગ કરવાવાળું કોણ છે, કોનો સાથ છે? જો તારી અંદર તાકાત હોય તો આવી જજે ભરૂચ જિલ્લામાં અનિલાબેન પાસે અને તું તારા વિધર્મીઓને પણ લઈને આવજે કે આદિવાસી શું છે, આદિવાસી સંસ્કૃતિ શું છે, આદિવાસી બહેનોનો શણગાર શું છે, આ બહેનો શું છે, એક બહેનો તરીકે શું કરી શકે એ તારે જાણવું હોય ને તો તું આવી જજે। હવે પછી આ ગેરસમજ ને ગેર રીતે અમારા આદિવાસીને દોરવાની કોશિશ કરવાનું બંધ કરી દેજે। અને હું તને એક જ વાત કરું કે આ સ્ટેજ પર તું બોલી છે એનો જવાબ અમે આપીને રહીશું અને એનો જવાબ મુંહ તોડીને જવાબ આપવા માટે અમે તૈયાર છીએ। નમસ્કાર। आज हमने सर्व समाज की महिला कलेक्ट्री परिसर में एकत्रित हुए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है क्योंकि 18 तारीख को मानगढ़ में एक आदिवासी रैली हुई थी। उस रैली में एक मैडम मेनका डामोर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि महिलाओं को बिंदी नहीं लगाना है, मांग नहीं भरनी है, चूड़ी नहीं पहननी, मंगलसूत्र नहीं पहनना। तो हम इस बात का विरोध करने के लिए हम सारी महिलाएं इकट्ठे हुए हैं। मैडम का क्या विचार है? ये तो सुहागिन का गहना है, हमारी हिंदू संस्कृति में सुहागिन का गहना है। अगर मैडम को शौक है कि विधवा बन के रहना है तो वो रहे, अपने अपने खुला विचार है, खुला मंच है। पर इस प्रकार की बातें किसी के ऊपर न थोपे और किसी भी बालिकाओं महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। मैडम को अपने आप को झांकना चाहिए कि स्वयं एक शिक्षिका हो करके जब विचारों से शिक्षिका नहीं है तो वो बच्चों को क्या ज्ञान देगी, महिलाओं को क्या ज्ञान देगी? इसलिए हम मैडम का बिल्कुल विरोध करते हैं। और राजकुमार जी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो उनसे पूछिएगा कि उनके पूर्वज कौन थे। हिंदू नहीं हो तो फिर आपका दाह संस्कार क्यों किया जाता है? आपके परिवार में मरते हैं तो दाह संस्कार क्यों किया जाता है? उनको दफनाया जाए, हिंदू नहीं थे तो उनके पूर्वजों को पूछा जाए। और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का हमारी युवा पीढ़ी और महिलाओं को गुमराह न किया जाए। राजनीति का आपका एक विचार अलग है, वो आप करते रहे, पर आप इस तरीके का हिंदू और सनातन धर्म में भ्रम न फैलाए। हम ये बात कहने के लिए आज सर्व समाज ने हमने ज्ञापन दिया और इसलिए इकट्ठे हुए। और मैडम अगर इन शब्दों को वापस नहीं लेगी तो अनवरत आंदोलन
करने की तैयारी हमारी चल रही है, इसलिए हम हिदायत देने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं अचला वसीटा, महिला जिला मंत्री। आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें, सर्व समाज की बहनें, हम सभी यहाँ कलेक्ट्री परिसर में एकत्रित हुए हैं आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। 18 तारीख को मानगढ़ धाम में किसी मैडम ने जो पेशे से टीचर हैं, शिक्षिका हैं, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में ऐसा कहा कि हम आदिवासी महिलाएं हिंदू में नहीं आती हैं और हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते और आज से हिंदू की महिलाएं न सिंदूर लगाएंगी मांग में और न ही मंगलसूत्र पहनेंगी। तो मैं उन मैडम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह की अपनी पर्सनल सोच को अपने तक ही सीमित रखें, बल्कि हम हिंदुओं या आदिवासी महिलाओं को टारगेट बना के हम हिंदुओं के बीच में अलगाव करने की कोशिश ना करें। बस आपको सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके पूर्वजों ने शुरू से, जब आप जन्मी भी नहीं हुई तब से बरसों बरस से आपके पूर्वज जो भगवानों की पूजा अर्चना करते हैं। आप जब शादी करती हैं तो 33 करोड़ देवता की मौजूदगी में शादी करती हैं। आपने मंगलसूत्र भी 33 करोड़ देवता की मौजूदगी में पहना। सिंदूर भी आपके पतिदेव ने 33 करोड़ देवता के समक्ष आपके मांग में सिंदूर भरा। आप उन सारी पुरानी परिपाटी को धकेलते हुए आप जो ये नया संदेश दे रही हैं, जिसके खिलाफ हम सभी हिंदू बहनें विरुद्ध हैं और अपने कठोर शब्दों में आपसे इसका विरोध करते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप किसी राजनीतिक नेताओं के झांसे में आकर राजनीतिक रोटियां सेकने की लालसा में आप हमारे हिंदू महिलाओं को मतभेद और जात पात में बांटने की कोशिश ना करें। आपका मेन उद्देश्य होता है एक शिक्षक जो होता है उसका मेन उद्देश्य, उसका एक मेन काम होता है कि बच्चों को या समाज को जात पात में न बांट के उनके विरुद्ध उन्हें चलना सिखाना चाहिए। जबकि आप खुद एक शिक्षिका होके जात पात में बट ही रही हैं, बल्कि आप आपके समाज के लोगों के साथ भी अलगाव कर रही हैं, हिंदू समाज के साथ भी अलगाव कर रही हैं। आपको एक बात बता दूं मैडम कि हम हिंदू लोग हम एक वट वृक्ष की तरह हैं, जिनका भले ही हम जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हमारा जो हिंदू धर्म, हिंदू कौम जो एक वट वृक्ष से है और हम जो जितनी उसकी जो डालियां हैं वो हम सब हमारी जातियां हैं। तो हम एक हिंदू कौम एक वट वृक्ष की तरह है और हमारे जो हम जातियों में हैं वो हम उसकी डालियां हैं। इसलिए हम उस वट वृक्ष से आप उन डालियों को अलग करने की कोशिश ना करें। और आज हम आदरणीय कलेक्टर साहब के सामने हमने जो ज्ञापन दिया है, तो आदरणीय कलेक्टर साहब से हमें रिक्वेस्ट की है कि आप अपने शब्द वापस लें। और कहीं ना कहीं इंसानों से गलती होती है, हो सकता है आपसे भी गलती होगी, आप अपने शब्दों को वापस लें, वरना होना कुछ भी नहीं है। हिंदू कौम सबसे समझदार कौम में आती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब अपने मान सम्मान की बारी आती है तो ये हिंदू पीछे रहने वालों में से नहीं है। इसलिए मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी उस गलती को स्वीकारते हुए अपने शब्दों को वापस लीजिए। फिर आगे जो हो उसका अंजाम आप ही जाने, क्योंकि अब हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं अब शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अपने शब्दों के जरिए हिंदू लोगों की संस्कृति को गाली दी है। हम महिलाओं की जो सुहाग के जो गहने उनको गाली दी है, तो आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे। आदरणीय
राजकुमार जी सांसद साहब से भी निवेदन है कि आपने जो अपने उद्बोधन में कहा कि हम हिंदू नहीं हैं आदिवासी भाई लोग, तो ये सिर्फ आपके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, तो आप उस पर अमल कीजिए। आप अपने आप को हिंदू मत मानिए, लेकिन आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इन भोले भाले हम हिंदू लोगों को अलगाव या हमारे बीच में मतभेद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कहने से हम बरसों से, जब से हमने होश नहीं संभाला था तब से लेकर अब तक हम सब क्या आदिवासी और क्या जात पात में न बैठ के हम सब एक ही धर्मों को मानता है, एक ही मंदिर में पूजा किए, एक ही तरह से हमने शादी, एक ही मतलब जिस तरह से ब्राह्मण हम सबको शादियों में जोड़ता है, वो उसी रीति रिवाज से आदिवासी समाज की भी शादियाँ होती हैं, हमारी भी शादियाँ होती हैं। इसलिए आप हमें आपकी इन बोली बाली बातों में हम हिंदू महिलाएं या हिंदू समाज नहीं आने वाला है। इसलिए आदरणीय सांसद साहब, आपसे भी निवेदन है कि आपका जो काम है उस पर फोकस कीजिए। आप इस तरह से जनता में अलगाव लाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका काम है, आप सांसद बने हुए हैं और आपके पास पावर से उसका आप यूज़ करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर किस चीज़ की कमी है, जनता को क्या चीज़ चाहिए और आप क्या दे सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। और आपको ये शोभा नहीं देता है कि हम जनता को जात पात में बांटो। आपके इस स्टेटमेंट से आपके खुद समाजजन भी इसके खिलाफ हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है, आप भी अपने शब्द वापस लीजिए, वरना मैं कोई नहीं, हम हिंदू भले ही दिखने में सादे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी एकता का परिचय देने पे आ जाएंगे तो फिर उसका अंजाम आप ही जाने। इसलिए आप दोनों से, मैडम जी से भी और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए हम हिंदू लोगों में, हम हिंदू भाई बहनों में अलगाव। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।